I hope you are all are going well. Okay, so we are started our chapter first, nutrition in plants. Okay, in which what we are discussed, we have discussed about that all organisms need what? Food. Okay, and utilize it to get energy. For what? For growth and maintenance of their body. Okay, this all thing we have studied, and we also discussed about photosynthesis. How green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis, and they are known as autotrophs. Okay, this all we have discussed. So in our last class, we are discussing about which type of plants. Okay, we are discussing about picture plant or insectivorous plant. So in our class, I have already shown you the picture. Okay, in your textbook also, the picture is there, 1.6. So let's see first insectivorous plants. Okay, which type of plants are they? Okay. So, insectivorous plants, first I am showing you the picture. Okay, see this. In this, see the structure of this plant. Okay, structure of insectivorous plant. So, which type of plants are they? They are the plants which can trap insects and digest them. Okay, they are able to eat insects. They are trapping insects. So, see the picture like or jug like structure. Okay, and one top is there. Clear. The apex of the leaf, a lid, which can open and close them. When the insects are coming near to this picture plant, you can see that how this lid is going to close. Okay, and the lid is going to close the mouth of the picture, and the insect is falling inside. Where the insect is falling? Inside. And there are digestive juices. Clear? Inside this, what is there? The digestive juices are there, and that this insect was digested by the picture plant. So this is the which type of plant? Picture plant. Okay, this is picture plant which eat what? Insects. Now see, so insectivorous plants in which we have seen picture plant. What can it do? Which can trap insects and digest them. Okay, that can digest them. This type of plants we are calling insectivorous plants. Now come to our next topic, that is saprotrophs. So what is saprotrophs? Okay, first you have to write this heading, saprotrophs. So just see what is saprotrophs. So the mode of nutrition in which, कैसा मोड होता है बच्चों? जिसमें कि organisms take nutrients. वो कहाँ से अपना पोषक लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? From dead and decaying matter. यानी जो dead matters होते हैं, जो सड़े गले हुए चीजें होती है ना बच्चों, उसमें से वो लोग अपना क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो आपको क्या करना है? पहले ये हेडिंग जरा लिख लेना है. सैप्रोट्रॉप्स क्या है? ठीक है, विच आर द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कैसे न्यूट्रिशन होती है, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम. कहां से वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है. अब हम आपको थोड़े से उदाहरण बताते हैं. ओके, वी आर गिविंग यू सम एग्जांपल्स. सी, आपने मशरूम, आप सबको पसंद है? मशरूम आपने खाया होगा ना? मशरूम पसंद है आप सबको? तो मशरूम कैसा होता है बच्चों?
जैसे कि आप सुपरमार्केट सब में जाते हो तो वहां पर जो है आपको मशरूम्स के पैकेट मिलते हैं, है ना। मशरूम आप सबने देखा भी होगा। तो जो मशरूम्स होते हैं बच्चों, वो कैसा होता है, उसमें जो है हमें एक वाइट रंग के होते हैं, है ना। हम लोग जो खाते हैं मशरूम, वो ज्यादातर कौन से रंग में हमें मिलते हैं, हमें सफेद रंग में मिलते हैं मशरूम्स, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने देखा होगा ना, खाया भी होगा, लेकिन सारे मशरूम्स हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो कुछ मशरूम्स, तो क्या होता है, तो ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो मशरूम्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कोई लकड़ी या कोई भी चीज जैसे कि बाहर पड़ी हो, उसमें क्या होगा, जैसे कि पानी उसमें पड़ता रहे, धूल मिट्टी उसमें पड़ती रहे, तो क्या होगा, उसमें से एक पैचेस निकल आते हैं, इस तरह के एक अम्ब्रेला शेप पैचेस निकल आते हैं। सो दैट फ्लफी, यानी ये सब फुले फुले हुए हैं ना बच्चों, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल। या तो कभी कभी ऐसे होता है कि मिट्टी में ऐसे उगे होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। मिट्टी में क्या होता है, इस तरह के पैचेस जो है उगे होते हैं। तो दिस पैचेस आर ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल, नम वाले जो मिट्टी होती है जिसमें नमी होती है, और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बारिश के मौसम में जो लकड़ी के टुकड़े या फिर कोई भी, है ना, जैसे कि घास फूस या फिर कुछ भी ऐसे पड़े हुए हो जिसमें से गल सड़ रहे हो, उसमें से क्या दिखेगा आपको, कि ऐसे अम्ब्रेला, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स आर ग्रोइंग फ्रॉम दैट, ठीक है। तो वो क्या है, वो मशरूम्स है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये मशरूम्स जो है ये एकदम से किस तरह से होता है बच्चों, ऐसे सफेद सफेद भी होते हैं और कई रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का फंगस है, क्या है ये बच्चों, ये एक तरह का फंगस है। तो आपने ये चित्र देख लिया ना, चलिए तो हम जरा इसके बारे में जरा देखते हैं। तो ये जो मशरूम आपने देखा, ये क्या है, ये एक प्रकार का फंगस होता है, ठीक है, जिसको हम सैप्रोट्रॉप्स, जो गले सड़े चीजों में से क्या लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं। तो देखिए बच्चों, फंगस, ठीक है, जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गन्स में मिलता है। तो दिस इज ए टाइप ऑफ फंगस, क्या होता है, ए टाइप ऑफ फंगस। एंड these organisms feed on dead and decaying organs, okay, matters. So ये dead and कैसे मैटर्स में ये होते हैं, किस तरह के भोजन लेते हैं, डीकेइंग यानी सड़े गले, ओके, डेड एंड डीकेइंग मैटर्स जो है ये होता है। और जब हम कभी कभी लकड़ी के टुकड़े, व्हेन वी थ्रो एनी वुडन लॉग इन द रेन, इट स्टार्ट डीकेइंग, वो सड़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद यू आर नोटिसिंग दैट सम growing, some growth is there, some fluffy umbrella like growth is there, and that is what mushroom, ठीक है, वो क्या होते हैं, मशरूम। so they, where did this mushrooms grow, they grow on the dead and decaying matter। इसी तरह से बच्चों आपने क्या देखा होगा, ब्रेड, कभी अगर आपने ब्रेड देखा हो, और ब्रेड को क्या करो आप एक दो दिन के लिए जो है खुले में छोड़ दो, यानी जो ब्रेड की पैकेट जो आप आपके पापा मम्मी खरीद के लाते हैं, जो हम लोग खाते हैं, हमें क्या करना है, उस ब्रेड में थोड़ा सा या कोई मॉइस्चर वाली जगह पर, जहां पर नमी हो, ठीक है, उस जगह पर जब हम लोग ब्रेड को छोड़ देते हैं, तो आपने कभी देखा है कि किस तरह से, है ना, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मम्मी सब फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखते हैं, और फिर आपसे बोलते हैं कि अरे बेटा वो ब्रेड तो खराब हो गया, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे वो ब्रेड में क्या खराबी है, जब आप देखते हो तो उसमें जो है इस तरह से ग्रोथ होती है, देखो उसमें एक हल्की सी नीला या काला भूरे रंग की, है ना, इस तरह की जो ग्रोथ होती है जब हम दो तीन दिन के लिए ब्रेड को बाहर छोड़ देते हैं। सो व्हाट वी कैन सी, फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, है ना। एंड दिस पैचेस व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग अंडर ए माइक्रोस्कोप, तो हमें ऐसा दिखता है कि एक अलग से रंग होता है, जिसमें जो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें जो हुए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं, ठीक है, या फंगई कहते हैं, फंगी कहते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, क्लियर, दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो
आपने देख लिया ना ये चित्र? चलिए, तो बच्चों ये जो ब्रेड के ऊपर हमने जो चित्र देखा, ठीक है, ये आपके किताब में भी दे रखा है 1.8। इन सब चित्रों को आप जरा ध्यान से देखिएगा और आप परीक्षण भी करके देखिएगा कि कोई भी एक ब्रेड लीजिए और इसको क्या कीजिए, एक दो या 2-3 दिन के लिए खुले में या किचन के किसी भी एक कॉर्नर में आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको उसमें क्या दिखेगा कि एक ग्रोथ हुआ हुआ होता है। ठीक है, क्या हुआ होता है बच्चों? एक ग्रोथ हुआ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंगी। ठीक है, जिसमें एक फंगस की ग्रोथ होता है। तो ये सब मोड ऑफ, जैसे मशरूम का देखा हमने, ब्रेड का देखा, ये सब किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ये सब जो है सैप्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसे है? सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स यानी जो गले सड़े हुए चीजों पर पलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपकी मम्मी जब जब आप अचार लेते हो बोतल से, तो आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा उसे अच्छे अच्छे चम्मच से लेना, सूखे हुए चम्मच से लेना, अच्छे से ढककर रखना अचार लेने के बाद, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है क्या होता है, पिकल्स, है ना, जो पिकल्स यानी क्या होता है बच्चों, अचार, पिकल्स। और कई बार आपने देखा होगा कि पिकल्स के ऊपर जो है एक सफेद सफेद तरह की फंगस क्या होता है, फंगस की ग्रोथ हुआ होता है, पिकल्स यानी अचार के ऊपर, यानी अचार खराब हो जाता है। तो वो भी किसकी ग्रोथ की वजह से होती है? इस फंगस की, इस फंगी की ग्रोथ की वजह से होती है। और कई बार आपने देखा होगा जो क्लोथ्स हम लोग लेते नहीं है, यानी जो कपड़े हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, या कई बार जो है लेदर की कोई भी चीज, यानी बेल्ट हो या बैग हो, है ना, ऐसे कोई भी चीज को क्या करते हैं हम लोग, जब खुले में छोड़ देते हैं, जब हम लोग उसको बिना पोछे या फिर बिना देखे इस तरह से बहुत समय तक पड़ा रहता है, तब उसमें भी किसकी ग्रोथ होती है? उसमें भी जो है बच्चों फंगस की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है ज्यादातर हमें ये रेनी सीजन में मिलता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, कई चीजों को खराब कर देती है। इसीलिए जो अचार सब होती है, आपकी मम्मी कई बार क्या करते हैं, उसे धूप में रखते हैं, है ना, कि उसमें से जो है सब फंगस सब चला जाए, अचार खराब ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि रेनी सीजन में ये ज्यादातर दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। ओके, और जो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? मेनली एयर में प्रेजेंट होता है। एंड दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, वो कई बार कैसे कैसे चीजों पर उतर के आ जाते हैं, या तो जो गीले होते हैं या फिर थोड़ी सी हल्के नरम होते हैं, है ना, एंड जर्मिनेट एंड ग्रो, और उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ उसके ऊपर होती है। समझ में आया? ओके, अब हम अलग देखते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि किस तरह से सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, तो आप क्या करोगे, इस डेफिनेशन को सब आप अपने नोटबुक में एक बार लिखकर पढ़ोगे। ठीक है, ओके। अब जो है अगला देखते हैं हम लोग, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ठीक है, अगला टर्म हम लोग क्या देख रहे हैं, सिम्बायोसिस। तो देखिए बच्चों, ये कैसे होता है, ये क्या है? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कई बार आपने देखा है ना, जब लंच का टाइम होता है, जब आप स्कूल में जब खाना खाते हो, तो आप क्या करते हो, कई बार आप बोलते हो अपने फ्रेंड्स से कि आज तुम अचार लेकर आओ और मैं पापड़ मैं लेकर आऊंगा, है ना, अचार तुम लेकर आओ, पापड़ मैं लेकर आऊंगा, या फिर आज तुम चावल लेकर आओ, रोटी मैं ले आऊंगा। और फिर क्या करते हो आप लोग लंच टाइम में, शेयर करते हो, यानी आपने उसको पापड़ दिया और आपके फ्रेंड ने आपको अचार दिया, तो आपके पास दोनों चीजें आ गई, है ना। तो इसी तरह से आप समझिए सिम्बायोसिस को क्या होता है कि लीव टुगेदर, एक साथ रहना। ठीक है, कैसा होता है बच्चों, लीव टुगेदर। ठीक है, लीव टुगेदर एंड शेयर, एक साथ रह के क्या करते हैं वो लोग, शेयर। बोथ यानी
जो भी चीज उनके पास है, यानी इसमें क्या है सिम्बायोसिस में, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई ऐसे जीव होते हैं जो कैसे साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं, साथ रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी जो शेल्टर है, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कोई शेल्टर देगा और कोई क्या देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है, इस तरह का जो रिलेशनशिप है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। यानी टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स। क्लियर, जो उनकी बेनिफिट्स होता है वो सभी उसको शेयर करते हैं, सभी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अब जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो सर्टन फंगी, यानी कुछ जो फंगस होते हैं, सर्टन क्या होते हैं, फंगी क्या करते हैं, लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। वो लोग कहाँ रहते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, पेड़ों के जड़ों में रहते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स। और प्लांट क्या देता है उस फंगी को, प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट देता है, एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। क्या करते हैं, वाटर, जो प्लांट्स है उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और जो फंगी है वो उसको न्यूट्रिएंट और पानी यानी नाइट्रोजन जो भी है वो क्या किसको देता है, प्लांट को देता है। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, लाइकन्स। ठीक है, एक उदाहरण लिख देखिए, लाइकन्स। जब हम लोग इस तरह से पॉइंट्स लिखते हैं तो आप हो सके तो आप लिख के भी रख लीजिएगा, और जाने के बाद, घर पहुंचने के बाद अच्छे से किताब को पढ़ भी लीजिएगा। तो लाइकन्स, लाइकन्स जो होता है बच्चों, इज एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसा होता है, एन ऑर्गेनिजम्स दैट, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, उनकी जो पार्टनर होती है विच इज एल्गा, उनकी पार्टनर लाइकन्स में जो है क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गा। तो इसमें क्या होता है, एल्गा एंड फंगस, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो लाइकन्स में क्या होता है कि देखिए, एल्गा और फंगस लीव टुगेदर, दोनों एक साथ रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, द फंगस, फंगस जो है एल्गा को क्या देता है, प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। ठीक है, फंगस एल्गा को क्या क्या देता है, वाटर देता है, ठीक है, मिनरल्स देता है, किसको देता है, एल्गा को देता है, और शेल्टर देता है। और इन रिटर्न ये जो एल्गा है वो क्या करता है, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू फंगस। ठीक है, क्या देता है, प्रोवाइड्स फूड टू फंगस। अब हम लोग थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं, चलिए। ये देख रहे हो ना इस पेड़ में, ये देख रहे हो आप, इस तरह की एक ग्रोथ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो पेड़ों में ये जो ग्रोथ हो रहा है, इसमें क्या होता है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना, लाइकन्स ये जो है आपस में साथ साथ रहते हैं। और ये क्या करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि हमने बताया कि क्यों, एक को फूड देता है ना। हमने क्या देखा कि जो फंगस है वो प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा, एंड एल्गा इन रिटर्न्स प्रोवाइड फूड टू फंगस। ठीक है, और उसी तरह से जो है और भी उदाहरण है, जैसे कि देखिए, ये देखिए और भी उदाहरण सिम्बायोसिस के, ये देख रहे हो है ना, पेड़, पेड़ का जड़ है, ये देख रहे हो आप, पेड़ का क्या है, ये जड़ है। तो ये जड़ों में ये क्या करते हैं, जड़ों में जो है इस तरह के जो हमने सिम्बायोसिस, फंगस रहते हैं, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स की जो ये जो मोटे मोटे देख रहे हो ना आप, इसके अंदर क्या कौन रहता है, फंगस रहता है। और जो पेड़ है ना, वो फंगस को क्या करता है बच्चों, रहने की जगह देता है। ठीक है, क्या करता है, रहने की जगह देता है, पेड़ फंगस को रहने की जगह देता है, और जो फंगस है उसके बदले इसको, पेड़ को क्या देता है, पानी देता है ना, और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो है इस पौधे को देता है।
ठीक है, तो बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट्स होता है। यानी फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर, क्या मिलता है, पेड़ जो है शेल्टर देता है और फंगस बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है इस पेड़ को देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग तरीके से हमने ये देखा। और जो है, और उसी तरह से जो है हमने क्या देखा कि कई नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये देखिए, ये देख रहे हो ना, एक पौधा है, तो पौधों को हमने आपको ऐसा बताया था, पहले ही बताया था ना आपको कि क्या पौधों को जो है डायरेक्टली क्या नहीं मिल पाता है, नाइट्रोजन जो है एयर से नहीं मिल पाता है ना। पेड़ों को क्या नहीं मिल पाता है, नाइट्रोजन जो है, दे कांट एब्सॉर्ब लॉट ऑफ मींस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, है ना। जब वो डाइल्यूटेड फॉर्म हो तभी क्या कर सकते हैं, वो लोग ले सकते हैं। तो दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स जो है क्या ले सकते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, पर नाइट्रोजन जो है क्या नहीं कर सकते, एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं एयर से। तो इसी तरह से जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, इस पौधों को, इस पेड़ को जो है नाइट्रोजन देते हैं, जो है राइजोबियम बोल के एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियम। सो यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्सॉर्ब क्या करते हैं, लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल। तो जो न्यूट्रिश जो मतलब कि जो हमें जो नाइट्रोजन, यानी ऐसे पेड़ पौधे उन लोगों को ज्यादा जरूरत किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। तो इस तरह की जो बैक्टीरियास है वो उन पौधों को क्या देती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियास होते हैं, जो क्या करते हैं, ये देख रहे हो ना कि ये जो पौधा है, ये जो है इस नाइट बैक्टीरिया को यानी भोजन दे रहा है, और ये जो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एयर में से नाइट्रोजन लेकर इसको कहाँ पर देख रहे हो ना, मिट्टी में घोलकर क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली इस रूट के जरिए पौधों को नाइट्रोजन दे रहा है। तो क्लियर हो गया कि किस तरह से सिंबायोसिस, यानी किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हुए, है ना, कॉम्बिनेशन में रहते हुए दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना, किस तरह से एक दूसरे को जो है बेनिफिट्स दे रहे हैं। पौधा जो है बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो गिव वाट, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन टू दिस ऑल प्लांट्स। क्लियर, चलिए, तो हमने क्या देखा कि, तो आपने सिंबायोसिस देखा, लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और जिसमें हमने फंगी देखा, है ना, और लाइकन्स में एल्गा और फंगस का उदाहरण देखा। तो इस तरह से हमने ये बात देखा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है सोयल में दोबारा वापस आ जाता है। ओके, चलिए, इतनी बातें क्लियर है ना। इन सब बातों को आप क्या कीजिएगा, घर में जाकर पढ़कर सारे पॉइंट्स को लिख के आइएगा। ओके, सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, लिख कर आओगे। और आप पढ़ोगे, तभी क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ये आप सबने पढ़ रखा है ना। प्लांट्स क्या एब्सॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सॉइल, है ना बच्चों, हमने पढ़ रखा है ये। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप्स देम ऑन डिक्लाइन, तो जैसे जैसे पौधा खींचता रहता है सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट सॉइल से, तो उसकी अमाउंट कम हो जाती है ना, सॉइल में क्या हो जाता है, उसकी अमाउंट जो है कम हो जाता है। इसीलिए फार्मर्स जो है क्या ऐड करते हैं बच्चों, फार्मर्स जो है क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद डालते हैं, है ना, जो मैनमेड भी होते हैं, और ऊपर से जो है क्या कैसे होते हैं, पशुओं के, है ना, काउ डंग, सभी हम लोग जो है डिकेइंग मैटर सब डालते हैं। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फार्मर्स आर एडिंग, ओके, टू प्रिजर्व द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेयर सॉइल, क्योंकि
कौन खींचता रहता है ये सॉइल से? पौधे खींचते रहते हैं, है ना? Plants absorb minerals and nutrients from soil, and their amount in soil is keep declining. So fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen. तो इसमें क्या होता है? कैसे कैसे नाइट्रोजन है? क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना? जब हम लोग जो मैन्योर डालते हैं तब इसमें जो है नाइट्रोजन होता है। फिर क्या होता है? पोटेशियम होते हैं, है ना? और क्या होता है बच्चों? पोटेशियम होता है ना? पोटेशियम होता है, प्रोस्पेरस होता है, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स जो है, जो हम लोग मैन्योर डालते हैं इसमें होता है। अब जो है क्या होता है कि क्रॉप प्लांट एब्सॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकेम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तभी हमने क्या देखा कि जो है नाइट्रोजन पौधे ऑब्जॉर्व करते रहते हैं और सॉइल में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है ना? सो यूजुअली क्या करते हैं? प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन गैस is available plenty in our air, but plants can't directly absorb this nitrogen. नहीं कर पाते हैं वो लोग, जो है डायरेक्ट absorb नहीं कर पाते हैं। और वो लोग क्या ले पाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, है ना? अपने भोजन बनाने के लिए वो लोग लेते हैं ये चीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू एब्सॉर्ब नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन उन्हें किस फॉर्म में चाहिए बच्चों? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, यानी उसे सॉल्यूट कर देना चाहिए। तभी फिर हमने क्या देखा कि वहां पर जो है बैक्टीरियाज काम करते हैं, इसीलिए जो है वो लोग साथ रहते हैं। और हमने कौन सा बैक्टीरिया देखा? द बैक्टीरियम कॉल्ड, कौन सा बैक्टीरिया के बारे में हमने अभी आपसे बात किया? राइजोबियम। ओके, ये स्पेलिंग भी आप याद रखोगे और जो है क्या करोगे? इसको लिख के भी रखोगे, राइजोबियम। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूसेबल फॉर्म। हमने आपको चित्र दिखाया था ना कि वो बैक्टीरिया जो है क्या कर सकता है? वहां से एयर से नाइट्रोजन खींच सकता है और सॉल्युबल फॉर्म में किसको दे सकता है? पौधों को दे सकता है। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ, कहाँ कहाँ रहते हैं? सारे पौधों के, यानी जो ग्राम है जिनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन, है ना? पीस है, मूंग है ना, जो सभी हमें प्रोटीन सब प्रोवाइड करते हैं, बीन्स है, और अदर लेग्यूम्स दैट प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो क्या हो जाता है इसमें? ये जो राइजोबियम है इसको पौधे शेल्टर देते हैं इस बैक्टीरिया को, और उसके बदले वो उन्हें क्या देता है? पौधों को जो है नाइट्रोजन, यानी काफी मिनरल सब प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पर हमने क्या कैसा रिलेशनशिप देखा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स। Clear? So they can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants were growing. ठीक है बच्चों? तो हमने क्या देखा? आज हमने ये सारी बातें पढ़ी, जैसे कि दाल हुआ, है ना? दाल यानी पल्सस। ओके, तो अब हम जो है इसकी जरा रिकैप करेंगे इस चैप्टर को। अब मुझे ये बताइए कि जो इसके बैक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो कितने स्कूलों को चाहिए? अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम आपको लिखकर आपको अगले इसमें देना है तो यस टाइप कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है तो नो टाइप कीजिए। चलिए जल्दी से यस और नो टाइप कर दीजिए। उसी के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, एक एमसीक्यू क्वेश्चंस 5 मार्क के हम लोग आपसे पूछने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। और अगर आपको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस चाहिए तो आप क्या कीजिए? यस टाइप कीजिए, नहीं चाहिए तो आप नो टाइप कर दीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग एमसीक्यू की तरफ जरा चलते हैं। सिर्फ 5 प्रश्न पूछेंगे, सब जल्दी से तैयार रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मींस, इंसेक्टिवोरस प्लांट से क्या मतलब है? ए, द प्लांट्स विच ईट अदर प्लांट्स, द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, सी, द प्लांट्स विच ईट नथिंग। इसमें से जो सही है ए बी सी लिख लीजिए।
और आपको आंसर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, नहीं चाहिए तो नो टाइप कीजिए, ठीक है, वो मैं बाद में पढ़ लूंगी। आप लोग इसका उत्तर अभी दीजिए। अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग पहले से ही कर चुके हो तो फिर हमें देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आपको चाहिए तो आप टाइप कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया ना, लिख लिया। नाउ लेट्स मूव अवर सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take nutrients from dead and decaying matter is known. The mode of nutrition in which organisms take nutrients from dead and decaying matter is known as इसको क्या कहते हैं? A. Saprotrops, B. Symbiosis, C. Prototrops. जो उत्तर सही है वो लिख लीजिए, ए बी सी। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। Organisms which live together and share both shelter and nutrients are known as. Organisms which live together and share both shelter and nutrients are known as. क्या कहते हैं उसको बच्चों? A. Symbiosis, C. Biosis, C. None of these. जो कहते हैं वो लिख लीजिए। चौथा प्रश्न देखें। चौथा बार देखिए। Which part of plant take carbon dioxide from the air for photosynthesis? Which part of the plant takes carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन सा पार्ट लेता है? A. Stomata, B. Petals, सॉरी ये C है, C. Roots. चलिए देखिए कौन सा सही है वो लिखिए। A. Stomata, B. Petals, C. Roots. लिख लिया? सिर्फ ABC लिखना काफी है। अगला देखिए। फ्लफी अम्ब्रेला टाइप लाइक पैचेस, फ्लफी अम्ब्रेला टाइप लाइक पैचेस growing in the most soil, growing in the moist, ओके ये मोस्ट गलत लिखा हुआ है, moist soil यानी गीली सॉइल में जो होता है, और on rotting wood during rainy season is, जो रेनी सीजन में जो उगता है उसे हम क्या कहते हैं? ए सनफ्लावर, बी मशरूम्स, सी नन ऑफ दिस। जल्दी से लिखिए क्या कहते हैं उसे। Fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during rainy season is. का आंसर जो है लिख लीजिए। चलिए अब हम शुरू करें, क्वेश्चन आंसर शुरू करें। आंसर्स के लिए सब तैयार रहिए। Sony ma'am came ma'am. Okay, answers, sir, please unmute them. Karthik sir. Yes ma'am. Shall I unmute all the students? Yeah. Okay fine. Okay, first one, insectivorous plants means. जल्दी बताइए उसका आंसर क्या है फर्स्ट का? बोलो
हाँ बी, बिल्कुल सही। द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों। सेकंड बोलिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। Separate rocks. क्या बोलते हैं? डेड एंड डिकेइंग। Separate rocks. सेप्रोट्रॉप्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया, ए। तीसरा देखिए, ऑर्गेनिजम्स विच लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। सिम्बायोसिस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, ए। चौथा प्रश्न देखिए, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग, बोलिए, मॉइस्ट सॉइल और रोटिंग वुड क्या है? मशरूम्स, बिल्कुल सही बोला, बी। तो मेरे बच्चों, बिल्कुल सही सही जवाब दिया। आज की कक्षा आपको समझ में आया? जी। हाँ बिल्कुल। और आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी को चाहिए अगले कक्षा में? जी। हाँ ठीक है, तो हम आपको अगले कक्षा में एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सबको पढ़कर आइएगा, और अगली कक्षा में हम तब फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। Thank you so much. Yeah, Karthik sir, kindly mute everybody.